Feeling the pressure about IELTS? Do not worry. A big part of preparing is feeling confident and organized. Today, we are filling out the IELTS exam form. No more confusion. Let's demystify this process altogether. So, generally, कैसे हम IELTS का exam form fill कर सकते हैं? Right? There are two modes, that is online and offline. So now, आपको पता होना चाहिए through which platform you are going to fill your IELTS exam form, right? And in today's video, we are going to fill out the IELTS online exam form only. So अब clearly आप लोग एक node login form अपनी screens पे देख सकते हैं. That is the original portal of IDP IELTS and India में खाली IGP ही है जो IELTS का exam conduct कराती है. And since Worldedics is the official partner of IDP IELTS, that's why we have the node login portal. So now I have entered my email ID and password and we are entering the node login portal. And now this is what the original exam form look like. ऐसे ही अगर आप सेल्फ से भी भरते हैं IELTS का एग्जाम फॉर्म तो जो आपको स्क्रीन विजिबल होगी ये वाली IDP IELTS की स्क्रीन विजिबल होगी. सो फ्रॉम सेलेक्ट टेस्ट ऑप्शन से मैंने अभी पेन एंड पेपर बेस्ड IELTS सेलेक्ट किया है. देन टेस्ट मॉड्यूल मैंने एकेडमिक सेलेक्ट किया है बिकॉज मेरे को स्टडी अब्रॉड के लिए बाहर जाना है. एंड सिटी लाइक आई टोल्ड यू मैं कानपुर से हूँ तो मेरे पास नियर बाय लखनऊ पड़ता है तो मैंने लखनऊ को क्लिक कर लिया है. नाउ आई एम गोइंग टू बुक द एग्ज़ाम. सो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा अभी मेरे को एक स्क्रीन आ गई. इसमें दिखा रहा है पेपर बेस्ड एग्जाम्स की लखनऊ में कौन सी डेट्स अवेलेबल हैं एंड कंप्यूटर की कौन सी डेट्स अवेलेबल हैं. लाइक सबको पता है कंप्यूटर का एग्ज़ाम IELTS में एक दिन में 3 बार ही होता है, राइट? और पूरे मंथली रेगुलर होता है. तो कंप्यूटर की यू कैन सी कि मेरे पास 15, 16, 17, 18 लाइक पूरा एंड तक फरवरी के डेली की डेट है. जबकि पेपर बेस्ड एग्जाम्स में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है. सिर्फ 2 डेट्स हैं, दैट इज़ 17th of Feb एंड 24th of Feb. एंड उसमें भी अवेलेबिलिटी आप जितनी जल्दी भर देंगे उतना अच्छा रहेगा. सो आई हैव सेलेक्टेड 24th February. द एग्ज़ाम इज़ पेपर बेस्ड एग्ज़ाम. And see, the date is 24th February. I am getting the option of available. Test date 24th February 2024. Test type is academic. Test is pen and paper based IELTS. And the cost of IELTS exam is 17,000 rupees. मैंने जो select किया है that is test date 24th Feb. Test type academic. Test is pen and paper based. And price is 17,000 rupees. So now I am going to click on the book now option. So once I clicked on the book now option, अब ये IELTS का रजिस्ट्रेशन पूरा प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है, राइट? सबसे पहला जो इसका प्रोसेस होता है दैट इज़ पर्सनल डिटेल्स. इसमें मेरे को अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है. सो नाउ आई एम गोइंग टू फिल आउट माई पर्सनल डिटेल्स. द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई गॉट इज टाइटल. सो आई एम Amir, so I am going to write Mr. Then my first name is Ramandeep. And my surname and family name is Singh. My email ID is ramandeep.singh@worldedx.com. My mobile number is 9236454832. I have a valid passport and the number of my passport is R1456710. which is valid up to 2028 and it is 21st of October. My passport is going to expire on 21st October 2028 while my date of birth is also October 21st, but I was born in the year of 89. So while filling out each and every detail you should keep an eye on everything. Like एक भी color information can cause problems and IELTS से कुछ भी update कराना is really a difficult task. That's why you would need a professional to fill out your exam form. So do you have a permanent disability such as a visual, hearing or specific? I don't have any disability, that's why I have chosen the option no. And you have to click on this button. I confirm that I have read and agreed to the terms and conditions. So once I'll click on it, I'll proceed to the next step. So next step is all about my personal details and now he'll be confirming my personal details once again. Like website will be confirming my personal details once again. So second step को जो IELTS की टर्म्स में उसको registration details बोला जाता है. Like if मेरा पासपोर्ट है उसका ID नंबर दे रखा है, valid up to है and date of birth है because जो मैंने first personal details वाले पेज में fill की थी. So I need to make sure and even the website makes sure कि आप कोई गलत information तो नहीं भर रहे हैं.
राइट, बहुत ध्यान से भरिएगा. आई नीड टू कन्फर्म माई email again. आई एम गोइंग टू रीराइट माई मोबाइल नंबर बिकॉज IELTS कंफर्म करता है आपकी email ID, बिकॉज दो ही तरीके हैं जिससे वो आपसे कम्युनिकेट करेगा. वन इज़ द email ID एंड मोबाइल नंबर पे भी सिर्फ अपने एंड से SMS करेगा, एंड दैट विल बी अ वन वे कन्वर्सेशन. सो नाउ आई एम गोइंग टू कन्फर्म माई मोबाइल नंबर इज वेल 9236454832, and it also asks for your alternate number, so I'm going to write my alternate number now. In the next column you need to fill out your address. My address is house number 133 Govind Nagar, and the place is in Kanpur. My city is Kanpur. I belong to Uttar Pradesh state and the zip postal code is 208006. My nationality is Indian, so I will write my country code, that is India 089. And first language, like our native language is Hindi, so I'm going to mention that. Since I'm in the field of education, I'm going to select my occupation as an education, while my occupation level is I am an employee in a certain company. So why are you taking a test? I have a plan to study for 1 or 2 years, so I'll be selecting the option for higher education extended course. Definitely select option number 1 for your IELTS exam. And next point we need to fill is which country are you applying to or intending to go to. See, suppose अभी मेरा प्लान है कनाडा जाने का और मैंने कनाडा क्लिक करके मैंने एग्ज़ाम भर दिया, बट ऐसा नहीं है कि आप IELTS के एग्ज़ाम से अपने कनाडा के लिए भरा है तो IELTS के एग्ज़ाम से आप दूसरी कंट्री में अप्लाई नहीं कर सकते. ठीक है, द वेबसाइट इज़ आस्किंग अस टू फिल दैट विच कंट्री वी आर अप्लाइंग टू, बट इतनी हमें लिबर्टी देता है कि हमने कनाडा के लिए फॉर्म भरा है, उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करते हैं तो कोई डिफरेंस नहीं आने वाला. यू कैन स्टिल अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलिया विद द सेम TRF स्कोर दैट यू विल गेट फ्रॉम दिस IELTS एग्ज़ाम, राइट. सो मैंने कनाडा फिल कर दिया है. अब उसके बाद अगर मैं इन कंट्रीज़ में नहीं जाना चाहता तो अदर्स होता, तो इफ़ अदर्स प्लीज़ स्पेसिफाई, मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करता. अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेयर आर यू करेंटली स्टडिंग इंग्लिश. इफ़ एप्लीकेबल, लाइक आई डोंट वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन बिकॉज और मैंडेटरी भी नहीं है तो मैंने अवॉइड कर दिया क्वेश्चन. What level of education have you completed? Right now I have done graduation, so I have written a degree or equivalent. How many years you have been studying English? मेरी बचपन से पढ़ाई इंग्लिश मीडियम स्कूल से हुई है from CBSE board, so I'm going to select 9 years or more, right? So ये information fill करने के बाद again I will submit. और submit किया, now it will ask for document upload. So there are 2 ways. अगर आप ऑफलाइन जाके करके आए हैं तो आपको इस वेबसाइट पे दोबारा आना पड़ेगा और यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी पेमेंट स्लिप, राइट. एंड अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, लाइक आई एम गोइंग टू पे राइट नाउ ऑनलाइन, तो मैं इसमें सिर्फ पासपोर्ट का फर्स्ट पेज और लास्ट पेज अपलोड करूँगा एंड देन आई विल प्रोसीड फर्दर. राइट नाउ आई डोंट हैव द कॉपी ऑफ माई पासपोर्ट, सो इसलिए आई एम स्किपिंग दिस पेज. जस्ट मेक श्योर कि जो पासपोर्ट की स्कैन कॉपी हो वो 1 MB से ज़्यादा बड़ी ना हो, अदरवाइज ये वेबसाइट आपकी पासपोर्ट की कॉपी नहीं लेगी, राइट. So I'm going to skip this section right now. The next option is RO details, that is recognized organization. This section is optional. If you have any references or organizations you directly want your result to be sent to, like आप कोई यूनिवर्सिटी से आप कंडीशनल ऑफर लेटर ले लेते हो और आप डायरेक्टली चाहते हो कि मेरा रिजल्ट मेरे पास तो पहुँचे लेकिन उस यूनिवर्सिटी के पास भी डायरेक्टली पहुँच जाए, तो यहाँ पे आप वो जाके फिल आउट कर सकते हो. अभी मैंने ऐसा कोई अप्लाई नहीं किया है, अभी सिर्फ आई एम प्लानिंग टू प्रिपेयर फॉर द IELTS, टू अपीयर फॉर द IELTS और IELTS के स्कोर के बाद अपना कॉलेज डिसाइड करूँगा. सो दिस सेक्शन कैन बी स्किप्ड और अभी राइट नाउ आई एम गोइंग टू स्किप इट एज वेल. सो नाउ जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन भरी एग्ज़ाम से रिलेटेड, माई टेस्ट डेट, माई टेस्ट मॉड्यूल, माई टेस्ट लोकेशन एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट मी, माई पासपोर्ट नंबर, माई email ID, माई फ़ोन नंबर, एक लास्ट चांस मिलता है हमें उसको रिव्यू करने का. अगर अभी भी हमने उसकी अपनी कोई कमी है जो गलत डाल दी, इन्फॉर्मेशन कोई भी गलत डाल दिया, लाइक एक पासपोर्ट के नंबर में एक सिंगल नंबर भी गलत डाल दिया है, सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, राइट. बिकॉज ईच एंड एवरी पासपोर्ट नंबर इज़ यूनिक. सो जब रिव्यू पेज पे आए तो मेक श्योर कि आप सब चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ें. बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि हमने एक बार भर दिया, मतलब लाइक
हार्डली इट विल टेक अराउंड 1 मिनट, फिर भी हम इग्नोर कर देते हैं, रिवाइज नहीं करते वट एवर वी हैव रिटन। एंड सेम हमारे साथ एग्ज़ाम में भी होता है, राइटिंग के एग्ज़ाम में हम बिना रिवाइज किए अगर एग्ज़ाम भर देते हैं तो कहीं ना कहीं गलतियाँ हो जाती हैं, राइट। सो अभी मैं पूरा रिव्यू कर रहा हूँ, मेरा हाउस नंबर, माई ईमेल आईडी, माई मोबाइल नंबर, एंड वंस आई एम सेटिस्फाइड विद वट एवर इन्फॉर्मेशन आई हैव गिवन इज करेक्ट, देन आई विल गेट दी ऑप्शन प्रोसीड टू पे। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन गलत है तो मैं यहीं पे अभी भी मेरे पास ऑप्शन है एडिट कर सकता हूँ अपनी डिटेल्स, राइट। आई फील कि मेरी सारी डिटेल्स करेक्ट है, सो नाउ आई विल प्रोसीड फर्दर टू पे। सी नाउ in this page I am getting the option like my test date is 24th Feb, test city is Lucknow and test type is academic, and this is the payment reference number, this is the fee, that is 17,000 rupees. So I get the option to fill my online fee through the wallets, through debit cards, credit cards and UPI banking as well. Online payment में Master Visa wallets powered by HSBC Bank, कोई भी मेरे पास अगर ऐसा कोई कार्ड है, मास्टर वीज़ा कार्ड है powered by HDFC Bank. So whichever your bank, whichever your trusted sector is, जो भी बैंक आपको लगता है आपका मोस्ट ट्रस्टेड है, जैसे मैं UPI बहुत यूज़ करता हूँ, सो रादर देन गोइंग फॉर ऑनलाइन पेमेंट आई वुड सिलेक्ट नेट बैंकिंग और UPI, एंड अकॉर्डिंगली अपना UPI फिल करके एग्ज़ाम भर दूँगा। एंड वंस आई क्लिक ऑन द पे नाउ ऑप्शन, मुझे एक जब पेमेंट कंफर्म हो जाएगी तो एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट मिल जाएगी। सो राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू पे इट फॉर माई सेल्फ, बट मैं आपको एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट दिखाता हूँ। सो वंस आई डू द पेमेंट, ऐसे एक रजिस्ट्रेशन सिस्टम एक डेवलप हो जाता है, लाइक एक्नॉलेजमेंट का एक लेटर मिल जाता है कि वी हैव डन द रजिस्ट्रेशन। लाइक मैंने 24 फेब को एग्ज़ाम भरा, टेस्ट सिटी लखनऊ थी, एकेडमिक था, पासपोर्ट नंबर ये था, राइट, एंड दैट इज़ इज फी, पूरा इनवॉइस नंबर वगैरह सब कुछ आता है। एंड वंस आई गेट द रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट, बहुत ही जल्दी लाइक in around 5 to 10 minutes मेरे को मेल भी आ जाएगा from IDP IELTS, and similarly I'll get the message as well. So this was all about how you can enroll yourself in the IELTS exam using the IDP IELTS online portal. You have the chance to fill the exam form by yourself, or you can take the expert advice. Like you can call us, you can write a comment on this video as well, and someone from our team will definitely help you with each and every question, whatever you have. Do not forget to subscribe to our channel. Thank you. Bye-bye.